Uh, First of all, I express my gratitude to the Most Venerable Sibli Theology uh, and the President of the Mahabodhi Society of India, Mahendra Singh Ji, my teacher, Professor Bimlendra Kumar Ji, the Vice President of Mahabodhi Society India, and the entire team of the Mahabodhi Society for giving me this opportunity to speak on this very auspicious and enlightening day in the entire humanity. Though Professor Ramesh Prasad ji has given the framework of this important date, and the first speaker, Venerable, has also cited the importance. I just would like to focus on the term Dhammachakra. And I'm very sorry to say that I have prepared my lecture in Hindi. Though I prepared a write-up, a long write-up around 5,000 words. And I think it would be better to read out the write-up. Otherwise, I will go here and there. So in order to stick with the idea, the canonical idea about the meaning of the word Dhammachakra, the usage, historicity, and the importance of this word, I think it would be better if I will go with my write-up. So I would like to forgive those, participant or listener who could not understand Hindi. So please forgive me for that. Before that, it would be better to also highlight some important thing about this particular date. I mean, the Vishal, this date, I mean, wait a minute, sorry. Ashadha Purnima. Though we know the four important, the events of the life of the Buddha, is descending in the Kuchi of Maya Devi, his renunciation, first speech. But the tradition also goes and add many more things to this date particularly. Especially, it is said that the Siddhartha, the Rahula was also born in this date at Ashadha Purnima. The Buddha also shown the Yamak Patiharya at Sravasti at this date. And one of the very important events in the Buddhist ideology is the preaching of the Abhidharma. It is said that the Buddha preached Abhidharma in Tautins at this particular day. In the history of expansion of Buddhism, particularly in Sri Lanka, this date is observed in two important functions. I like to correct myself if anyone would, because this data I have collected from my academic sources, not from the practical knowledge. So maybe I am subject to correction. The Sri Lankan, that is called, in Sinhala, the term is called Esala. And they celebrate Esala Perohora Hera and Dalada Perohera, like this two terms. And this Dalada Perohera is the date once the Buddha's tooth relics arrived to Sri Lanka. And this is the day Ashadha Purnima.
One last important thing I just would add here is the information about the establishment of Bhikkhu order in Sri Lanka, and that is said again happened to be Asari Purnima. So these are the some important events noted down in the history of Buddhism, particularly to this Asara Purnima. So now allow me to go to my write-up, and actually Hindi or English may, to switch over, I face sometime issue also, but that's why I want to stick to my note. And I also would like to share my screen if you allow me. I mean, the host will allow me to share. I can share my screen to you, and that would be better for one who could read my text. The title I have given my today's topic is धम्मचक्र प्रवर्तन, बोधि का आलोक और धर्म का प्रवर्तन, अर्थ एवं प्रासंगिकता। वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्ध काल गणना में बुद्धिस्ट कैलेंडर जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तिथि है वह है आषाढ़ पूर्णिमा। यही वह पावन दिन है जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, और जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं। कालक्रम में यह पहला उपदेश होने के अतिरिक्त महत्व की दृष्टि से भी प्रथम है, क्योंकि इसमें बुद्ध धर्म के मूल सत्य का निरूपण है, और यह उद्दीपन के प्रारंभ में एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो के रूप में है, जिसमें बुद्ध के समय प्रचलित धर्म दर्शन पद्धतियों, जिसे बुद्ध अपने इस डायलॉग में हाईलाइट भी करते हैं, अतकिल मथान योगो एवं कामे सुकाम सुखल्लिकान योग से भिन्न मध्यमा पटिपदा को स्पष्ट किया है। यह सूत्र पाली परंपरा में महावग्ग, विनय पिटक के महावग्ग तथा संयुक्त निकाय के सच संयुक्त में अंकित है। इसका एक संक्षिप्त संस्करण गामनी संयुक्त निकाय में मिलता है, और मध्यमा पटिपदा के अंश के रूप में धम्मदायद सूत्र में भी सम्मिलित है। इस उपदेश का विवरण अर्य पर्येषणा सूत्र में भी प्राप्त होता है, और अन्यंत्र भी इसका उल्लेख बारंबार किया गया है। जैसा कि पाली साहित्य में वर्णित है कि बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध के भीतर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह धर्म जो मैंने प्राप्त किया है गंभीर है, देख पाना कठिन है, समझ पाना कठिन है, शांत है, उत्कृष्ट है, और केवल बुद्धिमान ही इसे जान सकते हैं। तो यदि मैं केवल यह धर्म का उपदेश करूं और दूसरे लोग उसे न समझें, तो वह मेरे लिए दुखदायी होगा, वह मेरे लिए कष्टदायक होगा। इस द्वंद्व के बीच परंपरा यह मानती है कि ब्रह्मा सहमपति वहां पर आग्रह करते हैं, अभी अभी जो बोधिसत्व से बुद्ध बने हैं उनसे, और कहते हैं कि देसे तू भंते भगवा धम्मम, देसे तू सुगतो धम्मम। भंते भगवान धर्म का उपदेश करे, सुगत धम्म का उपदेश करे। और तत्पश्चात बुद्ध उपदेश देने का निश्चय करते हैं। अपने खोजे हुए इस नए मार्ग का उपदेश देने के लिए बुद्ध उन 5 सहयोगियों को याद करते हैं जिनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत किया था। धर्म और दर्शन के इतिहास में यह एक अत्यंत विलक्षण और महत्वपूर्ण घटना है। परंपरा यह बताती है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उन 2 पूर्व गुरुओं का स्मरण किया, जिनके साथ उन्होंने साधना के पथ पर कुछ समय बिताया था। किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके दोनों गुरुओं का निधन हो चुका है, तब उन्होंने उन 5 मित्र सहयोगियों का स्मरण किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुद्ध इतने गहन और मौलिक सत्य का उपदेश देने के लिए
न तो किसी सगे संबंधी को याद करते हैं और न ही जातिगत परिजनों को, बल्कि उन मित्रों को याद करते हैं जो उनके विचारों की गहनता को समझने और ग्रहण करने में सक्षम थे। यह चयन इस बात को दर्शाता है कि बुद्ध का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि अपने अनुभव और ज्ञान को ऐसे पात्रों तक पहुंचाना था जो उसे न केवल आत्मसात कर सके, बल्कि आगे बढ़ा सके, जन जन तक प्रसारित भी कर सके। तो गुरु का जो पहला कर्तव्य है, एक उचित पात्र का चयन करना, इसका बुद्ध जो है बड़ा ही सही उदाहरण है। मैं तो कहता हूं कि जो सिलेक्शन कमेटी का जो प्रयोग है, अपने जीवन में बुद्ध पहली बार दिखलाते हैं कि आप जो है खोज कर सेलेक्ट कीजिए। धर्म दर्शन के इतिहास में यह एक और भी अनोखी घटना है कि छात्र गुरु के पास नहीं जा रहा है। गुरु जो है एक उचित पात्र को खोजते हुए अपना उपदेश देने के लिए आ, छात्र के पास पहुंचते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ती है। यह निश्चित कर लेने के बाद कि वह अपना पहला उपदेश अपने उन्हीं 5 मित्रों को देंगे, बुद्ध संबोधि, जिसे बोध गया का जो पहला नाम संबोधि जो अशोक के शिलालेख में भी मिलता है, से वाराणसी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में गया और बोध गया के बीच उपक आजीवक के पूछने पर बुद्ध उत्तर देते हैं कि वे धर्म का चक्र घुमाने के लिए काशी जा रहे हैं। धम चक्कम पवत्तेतुम गच्छामि काशीनम पुरम। यह वह ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार धम्म चक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रसंग में बुद्ध अपने उपदेश के प्रसार के लिए दुदुम्भी की उपमा का भी प्रयोग करते हैं। अंधी भूतस्मिन लोकस्मिन आह्यचम अमत दुदुम्बन्ति। अंधकार में डूबे लोक में वो अमरता का दुदुम्बे को बजाने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने भी किया। दुदंभी और चक्र के प्रतीक के बीच में बौद्ध साहित्य में चक्र का प्रतीक सर्वाधिक मानक और प्रतिष्ठित रूप में स्थापित हो गया। विशेष रूप से धम्म चक्र न केवल उपदेश का प्रतीक बन गया, बल्कि यह धर्म के विस्तार, उसके अनवरत प्रवर्तन और अपरिवर्तनीयता का भी द्योतक बन गया। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो देवताओं ने भी उल्लास पूर्वक उद्घोष किया, धम चक्कम पवत्ततिम। इसे अपटिवत्य अर्थात अपरिवर्तनीय कहा गया। इसका अर्थ यह है कि यह उपदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे सर्वत्र और सर्वकाल में स्थिर और अडिग रहे। पटिसंभिदामक में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, अपटिवत्यम समनेन व ब्रह्मणेन व देवेन व मारेण व ब्रह्मणा व केन जीवा लोकस्मिन्। जिस ब्रह्मा ने बुद्ध को इस उपदेश को प्रसारित करने के लिए मोटिवेट किया, वह भी इस उपदेश को वह भी इस चक्र को प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस पंक्ति का यदि आप अर्थ जाने कि कोई श्रमण, ब्राह्मण, न देवता, न मार, न ब्रह्मा, न ही संसार में कोई भी अन्य शक्ति इस धर्मचक्र को रोक सकता है। यह सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतीक बनकर धर्म के चिरस्थायी और उसकी सार्वत्रिकता को दर्शाता है। भारतीय धर्म दर्शन के इतिहास में चक्र और दुदुम्भी की उपमा अत्यंत गहन और प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए भी है। यहाँ मैं आपका ध्यान एक दूसरी परंपरा, हिंदू परंपरा की ओर भी ले जाना चाहूंगा, जहां हम देखते हैं कि विष्णु के हाथ में चक्र प्रतिष्ठित है, जो उनकी शक्ति, संरक्षण और धर्म के संचालन का प्रतीक है। इसी प्रकार दुदुम्भी का संबंध भी विष्णु से जुड़ा है, जिसे विजय, उद्घोष और धर्म की घोषणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यदि हम अश्वत्थ बोधि वृक्ष के प्रतीक को हिंदू दृष्टिकोण से देखें, तो जैसा कि पद्म पुराण में मिलता है कि उसके मूल में विष्णु, अश्वत्थ के मूल में विष्णु, मध्य में शंकर और शीर्ष पर ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। मूले यस्य स्थितो विष्णु मध्य तिष्ठति शंकर अग्रभागे स्थितो ब्रह्मा।
ऐसे में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब बुद्ध यह कहते हैं कि वे काशी, जो शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, आज जा रहे हैं धर्म चक्र घुमाने के लिए, तो यह मात्र संयोग है या कोई गहरा संकेत? यह प्रश्न विचारणीय है। मैं नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह संयोग ही होगा, किंतु यदि हम बुद्ध द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों, शब्दावली और उनके द्वारा चुने गए स्थानों एवं व्यक्तियों पर गहराई से दृष्टि डालें, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यंत सचेत, उद्देश्यपूर्ण और प्रतीकात्मक रहा होगा। ऐसा लगता है कि अपनी धर्म घोषणा के लिए उन्होंने ऐसे शब्द और प्रतीक चुने जो तत्कालीन समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक चेतना में गहरे बैठे हुए थे। इससे उनका उद्देश्य यह रहा होगा कि उनके उद्देश्य को व्यापक समाज सहजता से समझ सके और उसके प्रभाव और भी गहन और व्यापक हों। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन केवल आध्यात्मिक उद्घोषणा नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद भी था, जिसमें उन्होंने परंपरागत प्रतीकों का नए अर्थों और संदर्भों में पुनर्पाठ किया। धम्मचक्र प्रवर्तन शब्द का नाम और उसकी ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद भी रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय मराठी विद्वान धर्मानंद कौशाम्बी का मत है कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र शीर्षक बुद्ध कालीन नहीं है। धर्मानंद कौशाम्बी हमारे सबसे प्रथम आचार्य भी थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो मैं प्रणाम करते हुए इस बात को कह रहा हूं कि बल्कि यह नाम संभवतः सम्राट अशोक के समय के बाद ही प्रचलन में आया होगा, ऐसा कौशाम्बी जी का मानना है। उनके अनुसार चक्रवर्ती राजाओं की कथाएं और उनके चक्र प्रतीक जब समाज में अत्यधिक लोकप्रिय हुए, तब बुद्ध के इस उपदेश को भी यह भव्य और प्रभावशाली नाम धम्मचक्र प्रवर्तन दिया गया। कौशाम्बी जी के विचार में इस नामकरण के पीछे उस युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्रतीक प्रियता का प्रभाव निर्णायक रहा हो। हालांकि मैं कौशाम्बी जी के इस मत से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इसके विपरीत पाली साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन की संकल्पना, आइडिया और उसकी शब्दावली, वोकैबुलरी बुद्धकालीन ही है। उदाहरण के लिए दिग्ग निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में स्वयं बुद्ध यह कहते हुए दृष्टिगत होते हैं कि इद तथागतेन अनुत्तरम धम्मचक्रम प्रवर्तन्ति आनंद सदस्य कुलपुतस्य दर्शनीय संवेदनीयम ठानम। अर्थात यहाँ आनंद तथागत के द्वारा अनुत्तर धम्मचक्र प्रवर्तन किया गया है। यह स्थान किसी श्रद्धालु कुलपुत्र के लिए दर्शनीय और चित्त को उद्वेलित करने वाला है। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि धम्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा न केवल बुद्ध के जीवन काल में प्रचलित थी, बल्कि स्वयं बुद्ध द्वारा प्रयुक्त भी की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नाम महज अशोककालीन राजनीतिक प्रतीकवाद का उत्पाद नहीं है, बल्कि इसका मूल स्रोत स्वयं बुद्ध का उपदेश और उस उपदेश का ऐतिहासिक महत्व है। वस्तुतः धम्मचक्र प्रवर्तन केवल एक ऐतिहासिक घटना या राजनीतिक प्रतीक भर नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और सिद्धांतगत डॉक्ट्राइनल प्रक्रिया है। मैं यहाँ आपका ध्यान एक अलग घटना देवदत्त की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां देवदत्त कहते हैं, इथ मयम आवुसो समनस्य गौतमस्य संग भेदम करिसाम चक भेदम ते। मैं समन गौतम का संग भेद करूंगा, चक्र को तोड़ दूंगा। इस तरह इस बात का यह परिचायक है कि चक्र का अर्थ बुद्ध के संपूर्ण दर्शन से था, उनकी डॉक्ट्रिन से था। स्वयं बुद्ध द्वारा इस संज्ञा का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह अवधारणा बुद्ध के समय में ही न केवल प्रचलित थी, बल्कि उनके उपदेश की केंद्रीय धुरी भी थी। अतः कौशाम्बी का विचार ऐतिहासिक प्रतीकवाद के परिप्रेक्ष्य से रोचक अवश्य है, परंतु ग्रंथीय प्रमाणों के आलोक में यह पूरी तरह स्वीकार प्रतीत नहीं होता। दूसरी तरफ यदि हम पुरातात्विक दृष्टि से देखें, तो महान मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख में जिन धम्म पर्यायों का उल्लेख है, उनमें 7 सूत्र विशेष रूप से दिए गए हैं, निर्दिष्ट हैं।
जिनमें विनय समुख से, अलय वसानी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मुनय सुत्ते, उक्ति सपसने और लहुलो वादों का नाम है। विद्वानों का मत है कि इन सात में से प्रथम सूत्र विनय समुख से का संबंध बुद्ध के सामुकंसिका धम्म देशना, ऊंचा उठाने वाला धर्मोपदेश अर्थात धम्मचक्रोत्तम सूत्र से ही रहा होगा। इस संदर्भ में पश्चिम विद्वान एजे एडमंड्स, बंगाल के विद्वान विदुशेखर भट्टाचार्य, मराठी विद्वान कौशाम्बी ने भी समान विचार व्यक्त किया है। इसकी पुष्टि दिग् निकाय के अंबट सूत्र से भी होती है, जहां यह उल्लेख मिलता है। पाली की इस पंक्ति को आप देखें कि यदा भगवा अय्यासी ब्राह्मणम ओक्खर साति कल चितम मुदु चितम विनिवरन चितम उदग्ग चितम पसन चितम अथ या बुद्धानम सामुकंसिका धम देशना तम पकासेसी दुखम समुदयम निरोधम मग्गम। यहाँ जो शब्द है समुकंसिका धम, समुकंसिका, यही अशोक के शिलालेख में समुख कसे है। अर्थात जब भगवान इसी तथ्य को आप नीति प्रकरण अटकथा में भी आप देख सकते हैं, जहां पर कहा गया है चतुसच वसीना सामुकंसिका धम देशना। दूसरी ओर अशोक के शिलालेख में विनय शब्द आता है और इसलिए बहुत से विद्वान उसको विनय पिटक से संबंधित करते हैं। लेकिन पाली त्रिपिटक में के विभिन्न स्थलों में विनय शब्द का अर्थ विनय पिटक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ सिखाना या मार्गदर्शन है। इस प्रकार विनय समुच्चय का अर्थ सिखाने वाला धर्म या मार्गदर्शन के रूप में कर सकते हैं, और इसका अर्थ हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से लगा सकते हैं। इस प्रकार यदि हम सही सही इस सूत्र का पहचान अशोक के शिलालेख से भी कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र रहा होगा। जहां तक धम्मचक्रोत्तम सूत्र के शीर्षक का संबंध है, इस टाइटल का, इस पर प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान T.W. राइस डेविड्स 1881 में ही इसका सबसे पहला अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद इस टेक्स्ट का करते हैं, और वह एक बड़ा ही विचारणीय मत देते हैं। वो कहते हैं कि बौद्धों की समय, मैं उनको कोट कर रहा हूं, बौद्धों की समय और गति संबंधी अवधारणा अर्थात धर्म के सर्वोच्च साम्राज्य के राजरथ का चक्र निरंतर गतिशील रहकर आगे बढ़ता रहे, इसका वास्तविक तात्पर्य केवल धर्म चक्र परिवर्तन या कानून के चक्र को घुमाना नहीं है, जैसा कि इसे सामान्यतः अनुवादित किया जाता रहा है, बल्कि इसका गहन अर्थ है धर्म राज की स्थापना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइटियसनेस, अथवा धार्मिक शासन के राज्य की आधारशिला रखना। रीस डेविड्स के इस विश्लेषण के अनुसार धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को केवल उपदेश का प्रारंभ मानना इसकी सीमा को संकीर्ण कर देना होगा। दरअसल यह बुद्ध द्वारा स्थापित नैतिक आध्यात्मिक शासन की ऐतिहासिक उद्घोषणा थी, जो केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक और वैश्विक नैतिक व्यवस्था की स्थापना की भी आकांक्षा रखती है। इस सूत्र का अर्थ मात्र उपदेश देना नहीं है, बल्कि धर्म के सार्वभौम और शाश्वत शासन की घोषणा करता है। यह बौद्ध धर्म की उस महान दृष्टि को प्रकट करता है जिसमें धर्म को मानव समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम माना गया है। इस दृष्टिकोण में धर्म का चक्र सदा गतिशील रहता है, ताकि संसार को सतत धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर रखा जा सके। यह उपदेश केवल एक प्रतीकात्मक कार्यवाही नहीं है, बल्कि धर्म के सार्वभौम शासन के उद्घाटन की घोषणा है। यह एक नए नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग का उद्घोष करता है, जिससे समस्त संसार को धर्म, नीति और न्याय के पथ पर अग्रसर करने का प्रयत्न किया जा सके। इस सूत्र के ऐतिहासिक महत्व को भी रेखांकित करते हुए रीस डेविड्स कहते हैं कि वास्तव में हमारे पास इसमें उन शब्दों का सार है जिनमें महान भारतीय विचारक और समाज सुधारक बुद्ध ने पहली बार अपने नए विचारों का सफलतापूर्वक प्रचार किया। और यह सूत्र हमें कुछ ही संक्षिप्त तथा सटीक वाक्यों में उस अद्भुत प्रणाली का वास्तविक सार प्रस्तुत करती है, जिनसे मानव जाति के इतने बड़े हिस्से के धार्मिक इतिहास पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। रीस डेविड्स का यह कथन इस बात पर बल देता है
कि धम्मचक्र सूत्र केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह बुद्ध के नवाचार पूर्ण और मौलिक दृष्टिकोण का सजीव प्रमाण है। धम्मचक्र की मूल संकल्पना धम्मचक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म के चक्र को घुमाने से जुड़ी है, और इस घुमाने की प्रक्रिया का विभिन्न प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया है। विशेष रूप से पटिसंभिदा मग्ग, जो खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है, उसके धम्मचक्र कथा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि धम्मचक्रम थी के नठे न धम्मचक्रम, धम्मचक्र किस अर्थ में धम्मचक्र है, और इसका उत्तर विभिन्न प्रकार से दिया गया है। मैं यहाँ पाली लाइन भी थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपके लिए। धम्मयच्च पवतेति चक्कय्यच्चाति धम्मचक्रम। फिर कहता है चक्कय्यच्च पवतेति धम्मय्यच्चाति धम्मचक्रम, धम्मेन पवतेति धम्मचक्रम, धम्मचर्याय पवतति धम्मचक्रम, धम्मोत्थितो पवतेति धम्मचक्रम, धम्मे प्रतिष्ठितो पवतेति धम्मचक्रम आदि आदि। मैं इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि यह वह धर्म को घुमाता है और चक्र को भी घुमाता है, इसलिए उसे धम्मचक्र कहते हैं। वह चक्र को घुमाता है और धर्म को भी घुमाता है, इसलिए उसे धम्मचक्र कहते हैं। क्योंकि वह धर्म द्वारा घुमाता है और उसे धर्मचक्र कहते हैं। धर्मचर्या द्वारा घुमाता है, इसलिए धर्मचक्र कहते हैं। धर्म में स्थित होकर घुमाता है, इसलिए धर्मचक्र कहते हैं। धर्म में सिद्धि प्राप्त करके घुमाता है, इसलिए धर्मचक्र कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर तमाम ऐसे डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसे हम धर्मचक्र का अर्थ क्या है, इसको परंपरा, थेरवाद परंपरा बतलाती है। पुनः इसी सूत्र में कहा जाता है कि सदा इंद्रिय धर्म है, वीर इंद्रिय धर्म है, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा, बल आदि आदि, जो पूरा जो बोधिपक्षीय धर्म है वह धर्म है। और इन सब धर्मों को प्रवर्तित करता है, जो प्रवर्तित करता है, इसलिए उसे धम्मचक्र कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम संविधा मग्ग के अनुसार धम्मचक्र का जो अर्थ है उसको देखें, तो कहा जाता है कि जो धर्म है को भी और चक्र को भी घुमाता है, अर्थात यह धर्म के सिद्धांतों और उसके प्रसार दोनों को गति देता है, इसलिए यह धर्म चक्र। यह धर्म के माध्यम से चलता है और धर्माचरण द्वारा गतिशील रहता है। यानी केवल ज्ञान ही नहीं, आचरण भी इसकी धुरी है। अब सिर्फ हमें प्रतित समुत्पाद का ज्ञान हो लेकिन आचरण में नहीं हो, तो वह धर्मचक्र नहीं है। यह सूत्र कहता है कि जो स्वयं धर्म में स्थिर और प्रतिष्ठित होता है, वही इसे सही मायने में घुमा सकता है और दूसरों को भी धर्म में स्थिर कर सकता है। धम्मचक्र वह घुमाता है जो धर्म में निपुण होता है और दूसरों को भी निपुणता की ओर ले जाता है, जो धर्म की पूर्णता यानी पारमिता को प्राप्त करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, आदि आदि। पटिसंभिदा मत के अनुसार इसमें वे सभी धर्म तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें बोधिपक्षीय धर्म कहा जाता है, और इसमें समथ तथा विपश्यना जैसे तत्वों का भी उल्लेख है। बौद्ध मोक्ष मार्ग निर्वाण के लिए आवश्यक कोई भी तत्व यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। धम्मचक्र का प्रतीक मूलतः धर्म के प्रचार के स्तर पर प्रयुक्त होता है, यानी यह उस क्रिया का प्रतीक है जिसके माध्यम से बुद्ध ने अपने ज्ञान के संसार के लिए प्रवाहित किया। बौद्ध साहित्य में जब बुद्ध के बोधि क्षण की बात होती है, तब वहां चक्र की उपमा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उस समय नेत्र, चक्षुम उत्पादि, प्रकाश, आलोकम उत्पादि, पहिया उत्पादि जैसे प्रतीकों का प्रयोग होता है। इन प्रतीकों से यह संकेत मिलता है कि बोधि का या बोध का जो क्षण है, भीतर की दृष्टि और ज्ञान का उदय है, न कोई बाह्य प्रचारात्मक क्रिया। किंतु समय के साथ साथ धम्मचक्र शब्द का उपयोग केवल धर्म प्रचार तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसे बुद्ध के बोध ज्ञान प्राप्ति के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा। इस संदर्भ में पुनः पटिसंभिदात्मक अटकथा का एक उदाहरण बड़ा ही विशेष रूप से रोचक है, जहां कहा गया है कि दो प्रकार का धम्मचक्र होता है। द्विधम धम्मचक्रम, पटिवेद धम्मचक्रम, देशना धम्मचक्रयम ची। प्रत्यक्ष अनुभूति का धर्मचक्र और उपदेश का धर्मचक्र। अब यह क्या है, पटिवेद धम्मचक्र और देशना धम्मचक्र? इसे बतलाते हुए कहता है कथाकार कि पटिवेद धम्मचक्रम बोधि पलंके देशना धम्मचक्रम इसी पत्र। पटिवेद धर्मचक्र बोधि पलंक, बोधि वृक्ष के नीचे होता है,
और देसना धम्मचक्र इसी पत्तन मृगदाओं में। धम्मयच्च पवतेति चकैया चाति पटिवेद धम चक्कम उत्तम, चकैयच्च पवतेति धम्मय्य चाति देसना धम चक्र। धम को घुमाना और चक्र को घुमाना यह पटिवेद धम चक्र कहा गया है, और पुनः चक्र को घुमाना और धम को भी घुमाना यह देशना धम चक्र कहा गया है। इस प्रकार धम चक्र न केवल उपदेशात्मक स्तर पर गतिशील होता है, बल्कि यह बुद्ध के आंतरिक बोध, सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव का भी प्रतीक बन जाता है। अर्थात धम्मचक्र वह महान चक्र है जो बोधिसत्व द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त सत्य बोध, पटिवेद ज्ञान और फिर उसके देशना ज्ञान के माध्यम से संसार में प्रवाहित होता है। मुझे आप लोग स्टॉप कीजिएगा यदि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ तो। धम्मचक्र की व्याख्या केवल धर्म परिवर्तन या बोध तक ही सीमित नहीं है। पटी संविधात्मक अटकथा के में इसमें एक और आयाम जोड़ दिया गया है, और वह है धम्मचक्र का प्रहारात्मक स्वरूप, अर्थात इसे एक शस्त्र के रूप में देखना। पहरन चक्र, धम्मचक्र को पहरन चक्र भी कहा गया है। अटकथा में कहा गया है कि वही धम्म जो बुद्ध ने बोधि पलंग पर बैठकर मार्ग ज्ञान के क्षण में प्रवर्तित किया, चाहे वह इंद्रिय बल, बोधंग या मार्गांग जैसे विविध बौद्धिक और नैतिक सत्व हो, वह क्लेश शत्रुओं के विनाश के लिए भी प्रवर्तित होता है। और इस दृष्टि से धम्म एक ऐसा चक्र बन जाता है जो शास्त्र की तरफ प्रहार करता है, इसलिए इसे पहरन चक्र भी कहा गया है। मैं पाली पाठ को स्किप कर रहा हूं। इस दृष्टि से धम्मचक्र केवल कल्याणकारी प्रवर्तन का प्रतीक नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति भी है जिसका प्रयोग अज्ञान, अशुभ वृत्तियों और क्लेशों के नाश के लिए शस्त्र के रूप में होता है। अटकथा में इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है, तोयम च धम्मो क्लेश सत्तु घाताय पवततो परहन चक्कम वियाति चक्कय्यच्च। धम्मचक्र केवल एक इतिहास, इस प्रकार यदि आप देखें तो धम्मचक्र केवल एक ऐतिहासिक घटना या प्रतिता प्रतीकात्मक उपमा भर नहीं है। अब मैं अपने वक्तव्य का जो सारांश है मैं वह पढ़ रहा हूं, बल्कि यह वह क्रांतिकारी क्षण है जिसने संपूर्ण मानव जाति की सोच, आस्था और आध्यात्मिक पथ को एक नई दिशा और नया आलोक दिया है। आषाढ़ पूर्णिमा का यह दिन इसलिए अतुलनीय है कि इस दिन तथागत बुद्ध ने न केवल अपने बोधि ज्ञान का उद्घाटन किया, बल्कि संसार को वह अमूल्य धरोहर सौंपी जो दुख और उसके निरोध का मार्ग दिखलाती है। यह धम्म न केवल बौद्ध अनुयायियों तक सीमित रहा, बल्कि इसकी शिक्षाएं आज संपूर्ण मानवता की साझा विरासत बन चुकी। थेरवाद परंपरा के अनुसार धम्मचक्र दो स्तरों पर कार्य करता है, जैसा मैंने पहले ऊपर कहा, पटिवेद धम्मचक्र और देशना धम्मचक्र। पहला चक्र बुद्ध के भीतर आत्मानुभूति और सत्य बोध का प्रतीक है, जबकि दूसरा चक्र संसार में उस बोध के प्रचार और प्रसार का। इन दोनों चक्रों का एक ही लक्ष्य है, अविद्या और क्लेश का विनाश और कल्याण का प्रतिष्ठापन। यही कारण है कि अटकथा इसे पहरन चक्र अर्थात शस्त्र चक्र भी कहती है, क्योंकि यह चक्र अज्ञान और मानसिक विकारों के शत्रु को नष्ट करने का साधन भी है। इतिहास, पुरातत्व, शास्त्रीय साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन न केवल बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना थी, बल्कि यह संपूर्ण बौद्ध परंपरा के लिए एक घोषणा पत्र बन गया। इसी में उन्होंने मध्यम मार्ग, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस सिद्धांतों में न केवल दुख का निदान निहित है, बल्कि मानव जीवन को सन्मार्ग पर चलाने की अद्भुत कला और विज्ञान भी छिपा है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा वह पुण्य तिथि है जो हमें हर वर्ष यह स्मरण कराती है कि ज्ञान, करुणा और सत्य का चक्र निरंतर घूम रहा है और हम सब उसके सहभागी हैं। यह चक्र हमें सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक कल्याण, नैतिक उत्थान और सामाजिक न्याय की एक जीवंत प्रक्रिया है। इसलिए आज जब हम धम्मचक्र प्रवर्तन का स्मरण करते हैं, तो हम केवल अतीत की एक घटना का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उस धम्मचक्र को जिसे बुद्ध ने प्रवर्तित किया था, हम भी अपने आचरण, विचार और करुणा के माध्यम से निरंतर घुमाते रहें। यही तथागत के चरणों में
हमारा सच्चा सदा सुमन होगा। धन्यवाद।